So father side पे तो migrated from Afghanistan, and I'm talking about my great grandfather basically. मतलब वो migrate हुए थे गजनी से. And from my mom's side, my mom is Pathan, so वो नाना जो है वो बन्नू से थे, and my nani is from Marwat. And जब उनकी शादी हुई थी पेरेंट्स की तो they moved to Lahore. So जब मैं पैदा हुआ था, I was born in Lahore, moved to Switzerland roughly when I was around about first grade or KG or something. We were there for about 5 years or so. From there we moved to Malaysia for 2 years. फिर 2 साल बाद Cambodia shift हुए. फिर जब मेरे आखिरी 2 साल रह गए थे स्कूल के, so I moved back to Pakistan and was in LAS with Suli and Babar, and that's how we know each other. But father क्या करते हैं? And my father was he used to work in the NGO sector, WWF के साथ. Oh. And then he joined Nestle later on in his career. So वो corporate side पे भी shift हो गए थे. अच्छा. And then he was an academic, so he used to teach at LUMS as well. जब वापस आ गए थे सोशल एंटरप्राइज डेवलपमेंट, सो उन्होंने वही एनजीओ बिजनेसेस को मैनेज करना है. वाज अ मास्टर्स प्रोग्राम. What's his name? दाऊद गजनवी, दाऊद नासिर गजनवी. आप नाउ वापस आके एंग्रो ज्वाइन किया. सो एंग्रो ज्वाइन किया, फिर एंग्रो 5 साल मैंने काम किया. यू नो, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वाज गुड फॉर मी बिकॉज इट हेल्प मी स्ट्रक्चर माय just way of working a little bit, and I think हर बंदे को थोड़ा सा corporate का experience लेना चाहिए. You know, whether it's a year, 2 years, जितना भी है, because it does add to a lot of growth in, you know, your personal growth. उसमें आपको your way of thinking sort of changes a little bit. उसके बाद फिर जब मैंने वो छोड़ा, then that's when I got into roasting coffee, and मतलब मैंने ज़हन बहुत पहले से बनाया हुआ था that this is something I want to do. ये कौन सा year? This is bad with years, but must be about 6-7 years ago, I think. 6-7 years ago. Yeah, 5-6 years ago, I think. 2018-19 के टाइम पे. 2018-19 में तो ग्लोरिया जीन्स एंड सेकंड का वॉल्फ का बोका हेड था. So the idea का ख्याल कहाँ से आया? The idea was, so ख्याल इस तरह आया था कि मैं आपको जो अभी ये दिखा रहा था, European Coffee Trips, the website. My wife and I, we were visiting, हम Berlin गए थे to meet my mamu, and then there was a wedding we had to attend in Spain as well. ठीक है. This was about 10 years ago or so. Not 10 years, sorry, about 8 years ago or so, I would say. तो उस टाइम पे स्पेशली कॉफ़ी वाज रियली किकिंग ऑफ इन यूरोप. मतलब वो शुरू हो रहा था और ट्रेंड शुरू हो गया था. सो वो you know, and I'm a coffee drinker. मतलब मैं तब भी I was a coffee drinker. So and espresso was one of those drinks that I would just never be able to have for some reason, and I thought कि यार शायद मेरा palate इतना refined नहीं है, शायद मैं मतलब it's too, you know, मतलब मेरे से नहीं पी जाती ये. And when we went on this trip, वहाँ पे when I visited these really cool, quaint little coffee shops across Europe, तो वो वहाँ पे espressos मैं try कर रहा था, and they were delicious. मतलब वो I was able to knock them back like they were nothing, right? यहाँ पे मुझे लगता था कि मैं कोई पुराना कोई engine का तेल पी रहा हूँ या कोई डीजल का, मतलब you know वो पी रहा हूँ. Just generally जो आपके जितने भी यहाँ पे you know brands थे उस टाइम पे about 6-7 years ago, सारे international brands थे. सारे international brands थे. And I was like, what's the difference? Like, why is it that I'm able to have these coffees without making a face, and when I try to have an espresso here, मतलब I was having my lattes and cappuccinos यहाँ पे वो ठीक होता था, but उधर मैं espressos पी रहा था. लेकिन वहाँ कॉफी कंजम्पशन कितनी होती थी आपकी उस वक्त? जो ये स्टेज आई, my coffee consumption was at least 2-3 coffees a day, even then. You know, फिर भी आप बेंचमार्किंग करनी शुरू कर दी. Yeah, so I was like, ये क्यों, मतलब ये क्यों मुझे अच्छी लगी? मतलब नॉर्मली तो उस जमाने का जो नया एंट्रेंट होता है, इंटेंडर होता है, या जो नया मुतारिफ हो रहा होता है कॉफी से. So I wasn't new in coffee consumption, but
from thinking of it from a different perspective of a coffee industry person, that was new to me. But then that's when I started thinking about, okay, what's the difference? Why is it that I'm able to have these coffees, and why do these coffees taste so good versus the coffees that I have in Lahore? So that's when I got into specialty coffee and started reading up on it. फिर जब हम वापस आए, मैंने एक कॉफी मशीन ली, like a fancy Breville Barista Express मैंने लिया. अच्छा. फिर मैंने ना पड़ी हुई है अभी तक मेरे पास घर पे. I still use it. It's a great machine. So वो फिर मैंने यहाँ पे जब वापस आए, मैंने मशीन ली, तो मैंने ये अल्फता ईसा चीज़ वगैरह से ना I started buying beans. अच्छा, वो जो मैंने बीन्स भी ली, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे लगा कि it was a brewing process का कमाल, right? And it's just that it's freshly ground, तो वो इतना मजा आ रहा है. So वो फिर जब मैंने किया, I was like कि नहीं यार ये तो मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा. और पैकेजिंग देख के उठा लेते. साल 2 साल पुरानी रोस्ट की कॉफी हुई भी होती है, स्पेशली तो कॉफी एक क्रॉप है ना. So वो किया मैंने, तो I realized that okay, no, it's not the brewing process, it's the bean itself. And then I applied for a subscription to a bean that was from one of the cafes that I really liked in Germany, in Berlin, the Barn, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था. And उनकी subscription मैंने शुरू कर दी. अब वो सब्सक्रिप्शन जो है, मैं तो नौकरी पेश आदमी था, वो सब्सक्रिप्शन वाज एंडिंग अप कॉस्टिंग मी एन आर्म एंड अ लेग, बिकॉज वो होता था कोई 25,000 रुपए की मुझे मिलती थी कोई 2 हफ्ते की सप्लाई. वो जो फेडेक्स वाले डिलीवर करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर वेरी पर्टिकुलर कि डिलीवरी फास्ट हो, राइट, बिकॉज दैट वाज अ बिग फैक्टर इन द क्वालिटी ऑफ द बीन, कि वो रोस्ट हुआ हुआ है तो आपको विद इन 2 to 3 weeks वो चीज़ डिलीवर हो. तो वो आ रही है जर्मनी से पाकिस्तान, तो जी फेडेक्स वाला दरवाजे पे कोई 10,000 और ले लेता था, टैक्सेस और ड्यूटीज और कस्टम्स और पता नहीं क्या क्या पे. तो मैंने कोई 1-2 महीने किया, फिर मैंने कहा यार ये तो दिस इज नॉट फीजिबल, मतलब ये तो मैं आई कांट अफोर्ड दिस. माय कॉफी इज कॉस्टिंग मी ऑलमोस्ट 70,000-80,000 रुपीज अ मंथ, और मैं घर पे बना रहा हूँ. इट्स नॉट लाइक कि मैं कैफे पे जाके पी रहा हूँ, आई एम मेकिंग इट एट होम. सो देन आई वाज लाइक ओके, how can I achieve this here? And that's when I got into roasting. And फिर जब मैंने छोड़ा Engro, I took all my savings and funds and whatnot and bought a little roaster. Started. लेकिन सोच लिया था कि मैंने बना. सोच लिया था, I had made the decision. नहीं बनाना, कैफे नहीं बनाना, रोस्टरी है. उस टाइम पे तो my plan was कि मैं B2B पे focus करूँ, and I supplied to coffee shops. But coffee shops कह रहे थे कि यार हम क्यों ले, हमारा चल रहा है, हम खा रहे हैं. हालांकि my bean was probably similarly priced to the beans that they were already getting, but वो कह रहे थे कि हमारा कस्टमर बना हुआ है, हमने यही देना है. You're more resistant to change when things are okay. You're like भाई हम क्यों करें. और उनका कस्टमर जो बना होता था वो इंटरनेशनल बीन्स का बना हुआ. वो इंटरनेशनल बीन, और वो लोकल, तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि लाहौर का पहला लोकल काम करने वाला थर्ड कल्चर है. I don't know. I think जब मैं रोस्ट कर रहा था उन दिनों में Artisan was already there. Artisan was I think roasting beans, and this is when they were in Johor. So around about एक टाइम पे ही जो है यहाँ पे 2-3 चीजें फिर स्टार्ट हुई थी इकट्ठी, I think. Interesting start sources. Yeah. The first one है. Yeah. And first, second, third. उसके बाद फिर so the other perception in the market was that if it's local, it's inferior quality. And I would try to explain to them, yeah, okay, this is a much higher quality bean, and I'm giving it to you at a very good rate. But nobody was really giving much lift, right? Plus, basically, I was a home-based sort of a business. It's not like I had a big fancy mega roastery and फूफा के साथ मैं market नहीं enter हुआ था. Very sort of grassroots level पे मैंने start किया था. So, and because my roaster was small, I had to roast multiple times. So the number of roasts I've done is also, yeah, rotations भी होती हैं. वो भी मेरी मतलब exceed probably most other roasteries over here just because वो roaster इतना छोटा था मेरा. बिजली का बिल भी ठीक था. बिजली का बिल भी ठीक था. So then we were like, so तब जब IWC वाली बात हुई, so Ahad was in town. लेकिन अगर मैं Ahad से पहले आऊँ तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा आहिस्ता हो गया था.
अजवर थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा इसका है वो अच्छा आएगा पीछे। हाँ मेक इट Natural एम्बिएंट भाई है तो है इस तरह ना। अगर इसी टाइमलाइन को बिल्कुल गॉडफादर पार्ट 2 की तरह देखें या तो उस वक्त डॉन कॉर्लियोनो क्या कर रहा था? सुल्ली के इधर था। सुली उस टाइम पे मलेशिया फादर सुली वाज इन सुली जो है ओक्लाहोमा रहा था कुछ साल सो ही एट द वाज सेम टाइमलाइन दोनों को अगर हम I think in the पैरेलल 90s जब मैं जिन दिनों में when I was in Switzerland I think Sully was in Oklahoma वो उधर था and ये कितनी मजेदार टाइमलाइन बन सकती है। he moved back I think maybe 2 years before me कोई 1-2 साल पहले शिफ्ट हुआ और उसको मेरे से कख नहीं पता कि मैंने लेक्चर ज्वाइन कर लिया नहीं ऑब्वियसली उस टाइम तो किसी को कुछ भी नहीं पता और वो क्या कर रहा था था उसमें कोई काम so construction का काम कर रहा था so Sully was in construction and agriculture and Babar जो है Babar was running his textile business and he was focusing on that और एक बंदा कॉफी रिजुवेनेशन माइंड के साथ और लैंड कर लिया खर्चा कर लिया खर्चा कर लिया और अब थर्ड कल्चर so the name so जो नाम जो है वो शुरू ही इस तरह हुआ था so there was this phrase जो the same book जो आप जिसको refer कर रहे हैं refers to kids that grew up in cultures outside of their home culture Who read it first? So third culture kid का कौन सा I don't know who read it first मुझे ये नहीं पता but third culture kid का ये तो sociologist ने 60s में बनाया था नहीं but how you came up with this so वो तो मैंने so I came up with the name third culture because we are third culture kids right so you came up with this हाँ so I came up with the name third culture coffee because we were all third culture kids ठीक है and this was us trying to bring third wave coffee into Pakistan Wow. and so from there the name third culture coffee was just imagine I am sitting with a guy जिसने एक brand name बना के ना coffee revolution ले खैर अब आपने तो बहुत सब वो कर दिया उस टाइम में तो we were just thinking कि नाम है and it sounded cool and it was बताओ ना कि जो सारे मौका बैठ रहे थे ग्लोरिया जीन्स भरा होता था फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स आ रहे हैं वो सोच सकते थे कि एक थर्ड कल्चर खुला है वो भी जो गिरा दिया अभी खुला ही था साल हुआ था आई थिंक उससे तब वो भी मैंने वीडियो शूट की या आई सॉ वो मैंने देखा था आपने तो फुल उसको डॉक्यूमेंट करके वो डॉक्यूमेंट किया था और मैंने फिर एंड में बेरिस्टा से कहा था कि डोंट यू वरी हारून उसमें आया था यार हारून अभी भी गुलबर्ग है तो जबरदस्त है मुझे लगता था कि यार ये मुझे फील की तो मैं आप लोगों को जानता नहीं था मुझे वाइब ये आ रही थी कि ये बड़े कोई हार्ड बॉल प्लेयर है जो विकेट पे खड़े हैं ये क्या बात है कि so it's funny because बड़ा इनको उस the day that it happened actually हम ऑलरेडी अंदर से ही ऑपरेट कर रहे थे so उसी दिन में ही हम बंद नहीं हुए थे वो जो हो गया था मगर हमने चीजें अंदर शिफ्ट कर दी थी और हमने कॉफी कहा कि कॉफी नहीं रुकनी चाहिए यार अगर इसको फास्ट फॉरवर्ड करें स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपकी हार्ड वर्क चीजें खड़ा कर लिया हार्ड गिरा तो था it was no doubt it was devastating obviously वो तो हमारे लिए तो it was like the दुनिया रुक गई थी हमारे लिए मतलब कैपेक्स था अभी तो रेवेन्यू आने भी शुरू हुआ this was our only location at the time and yeah, I mean, obviously, and we had just started, and obviously it was devastating. And it had become a cultural sort of an icon also. मतलब वो एक लोगों के जिंदगियों का एक हिस्सा बन गया था, that container. And that same container, because we took it so personally, we were like, इसी container को हमने ठीक करना है. अच्छा. So that container that you see in Model Town is that exact same container. मैं भी Model Town नहीं गया. I will go there. So it's the same container. Wow. वही वाला है. उसी को हमने ठीक कराया. बड़ी इज्जत दी है container को. And we were like, we're not gonna go down so easy. Coffee. Yeah. ये नाम के ऊपर थोड़ा सा मुझे चाहिए कि ये फिलॉसफी कनेक्ट की कि मैंने यही नाम रखना है. So I think कहीं से भी कनेक्ट नहीं करता लाहौर के ब्रांड्स में बिल्कुल ही नहीं करता. So I'll explain to you why I think it connects. I feel like आजकल everybody because of social media, ठीक है. So in the 60s and 70s up till the 2000s there was no social media, there was no आपको बाहर की दुनिया की एक्सपोजर जो है आप ट्रैवल करके ही आपको मिलती थी, right?
But I think now, because of social media, everyone has exposure to, you know, Eastern cultures, Western cultures, European culture, Eastern European culture, you know. अब इसके through हम हर चीज़ की exposure हमें मिल रही है. So I feel like today everybody in some way, shape or form is a third culture kid, right? And then the other thing associated with the name is also that we're introducing beans from different cultures. Brazil से beans आ रही हैं, Colombia से beans आ रही हैं, Ethiopia से आ रही हैं, Kenya से आ रही हैं. So you're also introducing different cultures in Pakistan, and you want to try and highlight and showcase that as well over here. So it's like this. It's almost multifaceted. मतलब उसके इतने मैंने अपने दिमाग में बनाई हुई हैं sort of reasons as to why third culture coffee, right? So I can go on and on probably. एक लिखना टाइम ये ब्रांडिंग का चैप्टर लॉक कर लेना चाहिए, आर्काइव कर लेंगे ताकि आने वाले वक्त में यूट्यूब पे सुने ना सारे कि यही हमारा लोकल ब्रांड है यार, बड़ी सक्सेसफुल लोकल ब्रांड. मेरे ख्याल में हमें इस पे एक बुक भी लिखनी चाहिए, कैफे ब्रांड. अच्छा, अब इसको रैप अप करते हुए, सुल्ली तो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था ओक्लाहोमा में, एंड बाबा मन्नू टेक्सटाइल पाकिस्तान में था, गैम्बी आ गया. अब ये तीनों कनेक्ट कैसे हुए? प्री कोविड हम तीनों तो हम स्कूल में इकट्ठे थे, राइट? लेकिन थर्ड कल्चर से कनेक्ट कैसे हुए? वो इस तरह हुआ कि कोविड के दिन थे, एंड एट दैट टाइम आई वाज हेल्पिंग बाबर आउट विद some work related to his textile, and the roasting was happening in Sully's office, construction का office, because उसने कहा कि यार कोविड है, I'll have company, मेरे पास एक्स्ट्रा कमरा है, so इधर शिफ्ट कर लो. उससे पहले I was roasting सुल्ली ने. इससे पहले I was roasting in an empty एक खाली घर था फैल्कन के अंदर, वहाँ से मैं रोस्ट का वो कराए थे क्या? वो there was a relatives house and they were out of the country, so I was सुल्ली ने कहा कि मेरे पास आ जाओ कि at least कंपनी होगी. और सुल्ली का कोई आइडिया नहीं था ज्वाइन करने का? नहीं, not at that time. बस ये यहाँ से स्टार्ट हुई यार मेरी तरफ. हाँ, मेरी तरफ आ गया. फिर कोविड के दिनों में it was kind of like a hangout spot for all of us, because हम you know we couldn't go to coffee shops obviously because सब कुछ बंद होता था, so then we would just kind of hang out at the roastery. अब आपने आइडेंटिटी वाले को कनेक्ट करना है. हाँ, और यहाँ से कमर्शियल सेंस बनानी है, तो ये बैठ के बिजनेस डिस्कशन. कमर्शियल सेंस तो कभी हमने उसका तो सोचा ही नहीं. ब्रांड तो बनाया है, एंटी रजिस्टर कराया. But so we were all sitting at the roastery. आहद आया हुआ था कुछ काम के लिए लाहौर. यार बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हम बैठे हुए थे, हम शो लगा रहे थे, कॉफी बना रहे थे, and we were like, you know, you should just open up a coffee shop because beans तो कोई खरीदने नहीं वाला, किसी को समझ ही नहीं आ रही है, उसको खोल ही लेते हैं. मैंने कहा यार मेरा हमेशा दिल था कि किसी कंटेनर में करूँ, you know. अच्छा, ये भी ख्याल गैम्बी को आया? हाँ, तो आहद ने कहा कि bro, if you guys are serious, अगर तुम लोग बाकी मतलब बनने वाले बनो, और अगर जगह चाहिए तो मेरी जगह ले लो बेशक, शॉर्ट में चाहिए. अच्छा, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एंड फिर मुझे याद है सुली ने ना एक वो there was this container cafe जिसका प्रिंट आउट उसने लिया और उसने लिखा believe on top of it and he put it on the wall. और मैंने उस टाइम पे ना बातें ही हो रही थी, मैंने कहा क्या है यार बिलीव का इसने लिख दिया है. यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट हुआ है हॉस्टल रूम में लिखा हुआ है. It's so like what's the word? I don't know. वो तस्वीर पड़ी हुई है? पड़ी हुई है यार, वो मुझे चाहिए. वो हमने फ्रेम किया हुआ है. यार छोटी स्टोरी नहीं है. तो वो फिर वो फ्रेम कराई हुई है. वो फ्रेम कराई हुई है चाहते हो यार, वो मैं भी फ्रेम करा के घर डन आपको भी कॉपी करा देंगे. So then we set up, you know, बाबर आया. बाबर ने कहा कि चलो, you know, I also want in on this because you know कोविड के दिन है, हमें मिलने का मौका मिल जाएगा और शोल भी होगा. हमने कहा डन, and then we got a container खरीदा और फिर उसको डिज़ाइन करवाया हमने अनीक से, who's another friend of ours, he's an architect. और बस वो शुरू कर लिया, and then that's just, you know, that's how it started, and that's how it's been. March 2025 हुए. Yeah. And back in Switzerland having espresso in the morning. Yeah.
एंड देन पिक्चर स्विट्जरलैंड में तो मैं बच्चा था तब तो मैं कॉफियाँ नहीं पी रहा था तो फर्स्ट कॉफी कहाँ पे पी? फर्स्ट कॉफ़ी मैंने पी होगी, वैसे मैंने काफ़ी बचपन में ही शुरू कर लिया था कॉफ़ी पीना, बट फर्स्ट कॉफ़ी प्रॉब्ली मैंने स्विट्जरलैंड में ही पी होगी, बट नथिंग फैंसी, प्रॉब्ली घर पे ही मैंने बनाया। मैं इसको रैप अप इस तरह करना चाह रहा हूँ कि द वाटरफॉल ऑफ ऑल द कॉन्वर्सेशन इज, वो एक लिसनर को या जेन जी को या यंगस्टर्स को या जो हमारे नए बच्चे हैं उनको आप क्या कहोगे? ये तो मुझे लग रहा है कि इवन इफ एवरीवन सेज यू डोंट स्टैंड अ चांस, डोंट एवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। आई थिंक पहले तो डिफाइन करें ना कि ड्रीम क्या है, मतलब if क्योंकि a lot of people have dreamy ideas, ठीक है, these romantic ideas in their head कि मैं I want to open a coffee shop or I want to open a restaurant or I want to, you know, this is something that appeals to almost everybody, but just know that there's a lot of hard work that goes behind it as well, and if you see a place running you know, smoothly, it's because there's been a lot of hard work put in behind it. So don't just see something and say that I want to do this also. Truly be passionate about what it is that you feel, you know, that this is your dream. My dream is to, you know, own an aeroplane. I mean, you know, that's a dream, but it's, you know, wo kyun, kaise, kahan, kidhar, you know, think about all of that as well. Try to make it a little more realistic for yourself, right? And just do something that you're truly passionate about, and it takes time. I mean, and passions change over time as well, so you know, सोच समझ के करो, पहले करने से पहले थोड़ा सा experience लो, try to learn and make mistakes not on your own hard-earned money, but maybe somebody else's. Do a corporate job for a couple of years, try to bring in that way of thinking, you know, try to get that mindset, and then follow whatever it is that you are truly passionate about, and don't give up. Matlab, I started this at the age of 35 or 36 or something, I think, you know, and which is late. I mean, they say that, you know, जब entrepreneurial spirit होता है वो at a younger age start होता है, but I quit my job almost, I think, a week or 10 days after my son was born, right? Which most people would think, यार ये बंदा पागल है, मतलब इसका भी, you know, like, you know, क्या कर रहे हैं यार? So, but make sure that you're surrounded by good people. Make sure that you're surrounded by supportive people that believe in you. That, you know, because there's a lot of days when you feel like यार ये नहीं हो सकता और ये possible नहीं है, वो नहीं है. But then your support group, your family, your friends, they sort of give you that extra nudge. They make it happen. They don't, maybe they don't make it happen, but they'll continue pushing you. You know, make it happen तो आपने खुद करना. Yeah. मुझे लग रहा है इस सेगमेंट का नाम ही रख देना चाहिए, wishes do come true. They do. Wishes do come true. Of course they do, yeah. But just know that, you know, you have to put in the work as well. That's the main thing. मेहनत तो करनी पड़ेगी. Nothing comes easy. सर छागे कहाँ अहमद गज़नवी से स्टार्ट होके गैम्बी, ये भी एक लाइन मुझे चाहिए. गैम्बी क्या है? गैम्बी ये तो मुझे पता ही नहीं है. गैम्बी कौन है? जो है, जब मैं वापस शिफ्ट हुआ था कैम्बोडिया से पाकिस्तान, तो पहले हफ्ते तो मुझे कैम्बोडियन बुलाते थे ना स्कूल में. फिर पता नहीं किसी ने कहा कि एक गम्बी एक कैरेक्टर होता था बैक इन द डे, हमारे टाइम के होता था ग्रीन रंग का. तो किसी ने कहा कि आई लुक लाइक गम्बी, बट उसको नाम नहीं याद आ रहा था गम्बी. उसने कहा वो गैम्बी नहीं होता था, गैम्बी. So it's a mistake, you know. corruption of word. Yeah, and it's just, तो तब से वो, क्योंकि मैं जब कॉलेज भी गया हूँ तो मेरे साथ मेरे 2 हाई स्कूल के बड़ी थे, तो कॉलेज में भी गैम्बी होता था अमेरिका में. फिर जब मैं एंग्रो में भी था तो मेरा वो व्हाट्सएप पे वो गैम्बी लिखा हुआ था, तो वो ऑफिस वाले भी सारे गैम्बी. इंस्टाग्राम में क्या है? इंस्टा भी गैम्बी है मेरे ख्याल में. गैम्बी है, गैम्बिनो. हाँ गैम्बिनो है. गैम्बिनो क्या है? वो बस मेरे इंस्टा का तो पता है आपको. और एक इंस्टा की बात और है, तो एक और भी चीज़ याद आई है, बस यहाँ पे एंड करते हैं. सॉरी मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया, तो बिल्कुल अनप्लान्ड था. मैं तो गाड़ी देखी, मैंने सलाम करूँ, मैं कुछ एक मीटिंग पे जा रहा था. अच्छा. यहाँ पीछे एक्सट्रैक्शन ब्रूस केप क्या है?
ब्रूस्केप नहीं, Brew Guys. ब्रू गाइस क्या? So Brew Guys is basically जब थर्ड कल्चर कॉफी था, जब मैं सिर्फ रोस्टिंग और रोस्टरी चला रहा था, उन दिनों में मेरे छोटे भाई का क्लास फेलो एक था माजिन, he wanted to also get into the coffee, you know, वो he was also passionate and वो he's also very much into coffee. उसने कहा कि यार मुझे ना पार्टनर बना दो. मैंने कहा जिगर मैंने इतनी मेहनत की और इतना काम किया तो मैं तुझे थर्ड कल्चर में पार्टनर तो नहीं बनाऊंगा. हम इस तरह कर लेते हैं, हम एक और कंपनी बना लेते हैं, उसमें हम 50-50 कर लेते हैं and third culture will just provide the beans, you know, at cost or whatever, and we'll do pop-ups around the city. So we started off with doing pop-ups at various other coffee shops. So Reena's पे हमने एक pop-up किया, फिर वो हमने Brew Guys था. Go Flower पे किया, that was Brew Guys. And it was a partnership business. It was a partnership कहने, but वो Very short. मुझे पता था कि उसने चले जाना है अमेरिका और उसने वो परसू नहीं करना है, इसलिए मैंने थर्ड कल्चर में भी उसको नहीं वो अभी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? coffee creative कर रहे हैं? he's in California and he's doing consultancy काम कर रहा है वहाँ पे. तो इसका मतलब है लिसनर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गैम्बी की गट बड़ी स्ट्रांग है. मुझे ये मैं जो लाइनें कीवर्ड उठा रहा हूँ ना, मुझे पता लग गया था कि ये इनको पता ही नहीं है कि क्वालिटी बीन्स क्या होते हैं उस मार्केट में 2019 में. एंड मुझे पता लग गया था कि गेम चेंज होने वाली है. मुझे पता लग गया था कि डेविस्टेटेड इनसाइड हम ऑपरेट कर लेंगे. हम कम तक याद क्या gut instinct is something that I think मुझे लग रहा है कि is गैम्बी very इज द important. गट्स. नहीं gut instinct is तो अभी हर गट क्या बंदे की लगता है होती है. थर्ड कल्चर नेशन वाइड स्प्रेड करेगा? यार मैंने तो नेशन वाइड भी जाना है, मैंने तो इंटरनेशनल भी जाना है.